Here, find the area of a quadrilateral ABCD in which AB equal to 3 centimeter, BC equal to 4 centimeter, CD equal to 4 centimeter, DA equal to 5 centimeter, AC equal to 5 centimeter. Let's see. Here, A, B, C, D is a quadrilateral in which AB equal to 3 centimeter, BC equal to 4 centimeter, AD equal to 5 centimeter, CD equal to 4 centimeter, and AC equal to 5 centimeter. Now we have to find the area of the quadrilateral. Let's you are seeing that here we have given two triangle ABC and triangle ABC. If we will calculate the area of the both triangle, then we can easily calculate the area of the quadrilateral by adding both the area. So let's see. In triangle ABC, all the three sides are given. So here, what is the semi-perimeter of triangle ABC? Anant Vajpayee, tell me what is the semi-perimeter in triangle ABC? 6 centimeter. Okay, by adding them and divide by 2 equal to 12 by 2 which equal to 6 centimeter. Now apply Heron formula in this triangle. Gauri Pandey, what is Heron formula? Okay, apply Heron formula which equal area of triangle ABC by Heron formula equal to S into S minus A into S minus B into S minus C, which equal to 6 into 6 minus 3 into 6 minus 5 into 6 minus 5. Solve it and tell me what is the answer. 6 centimeter square is area of triangle ABC. Now similarly find the area of the triangle ADC. In triangle ADC, what is semi-perimeter? Sum of all side of triangle 5 plus 5 plus 4 by 2 which equal to 4 by 2 which equal to 7 centimeter. Now apply Heron formula on this triangle. 7 into 7 minus 5 into 7 minus 4 into 7 minus 5. 7 into 2 into 3 into 2 which is 2 under root centimeter square. Now by adding both the area we can get area of quadrilateral. So now area of quadrilateral ABCD equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD which equal to 6 plus 2 under root 21. And we can write 2 under root 21 4.58. Then after adding both of them we get 6 plus 9.16 and 15.16 centimeter square will be our area of the quadrilateral.
Do you understand it? Okay, okay. मैं दर्शिका वाजपेयी कक्षा 7 की छात्रा हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय सीगढ़ में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस वजह से हम लोग अपनी क्लासेस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं और जिसमें कि हम लोग को बहुत सारी समस्या भी झेलनी पड़ती हैं और उसमें तो कभी कभी नेटवर्क की भी समस्या आ जाती है, लेकिन हम लोग फिर बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी भी तरह करके सर लोग वीडियो भेजते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपना कार्य पूरा कर पाते हैं। हम लोग तो किसी भी तरह करके यूट्यूब से देख के कर सकते हैं अपना काम, लेकिन प्राइमरी क्लास के बच्चे तो बहुत ही कम समझ पाते हैं, जिसके कारण प्राइमरी क्लास के शिक्षकों को बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ती है। इस वजह से हम उन्हें बहुत ही धन्यवाद कहना चाहते हैं कि वो इतनी मेहनत करके छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं समृद्धि केंद्रीय विद्यालय शिवगढ़ कक्षा 7वीं की छात्रा। लॉकडाउन के दौरान हम अपनी ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि ग्रामीण एरिया में नेटवर्क दिक्कत की वजह से हम अपनी क्लास रोज अटेंड नहीं कर पाते और कभी हमारे पास फ़ोन भी नहीं रहते हैं। इतनी समस्या में भी हमारे टीचर्स हमें ऑनलाइन क्लास करवाते हैं और हम अपने सब सब्जेक्ट भी कर लेते हैं। हम अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा पुत्र अर्पित केंद्रीय विद्यालय शिवगढ़ रायबरेली का छात्र है। इस समय भारत जो कोरोना महामारी की चपेट में आ जाने के कारण विद्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासों का संचालन किया जा रहा है, जिससे सभी छात्र और मेरा पुत्र भी गूगल मीट के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है, जो शिक्षकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा द्वारा जो है मीट पर ऑनलाइन क्लास किए जाते हैं। धन्यवाद। मैं केवीएस में क्लास 6 के स्टूडेंट अथर श्रीवास्तव की मां बोल रही हूँ। मैं कोविड-19 महामारी के काल में केवीएस द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए उठाए गए कदम ऑनलाइन क्लासेस केवीएस शिवगढ़ परिवार की सराहना करती हूँ। शिक्षकों ने ये सिद्ध कर दिखाया है कि ग्रामीण अंचल की समस्याओं को भी लगन से दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। Good afternoon, all of you. My name is Rishika Vajpayee and I am elder sister of दर्शिका वाजपेयी। सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय शिवगढ़ का और दर्शिका के क्लास टीचर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान किया कि मैं सबसे पहले विद्यालय के बारे में और इस समय की व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचार रख सकूं। इस समय जैसा कि हम जानते हैं कोरोना महामारी का समय चल रहा है। जैसा कि सरकार ने आदेश दिया कि सभी बच्चों की पढ़ाई को न रोकते हुए उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा यह फैसिलिटीज़ प्रदान की जाएं, जिसके लिए मैं सबसे पहले भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज के युवाओं के लिए इतनी अच्छी सोच रखी। और केंद्रीय विद्यालय शिवगढ़ के प्रिंसिपल का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि वो बच्चों की क्लास चलते समय भी बीच में मीटिंग में ऐड होकर यह देखते हैं कि टीचर सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं। यह बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि आज के प्रिंसिपल्स के अंदर यह खूबी होनी चाहिए कि उनके विद्यालय में क्या हो रहा है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और विशेषकर प्राइमरी स्तर के टीचरों का, जो कि बच्चों जो कि इतने छोटे छोटे हैं उनकी पढ़ाई में इतना योगदान देते हैं। छोटे बच्चे हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है ऑनलाइन क्लास के दौरान, फिर भी वो अपने गुस्से को भी काबू कर उनको इतने प्यार से समझाते हैं, जिसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी और जूनियर स्तर के शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।